हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हब ऑफ नॉलेज मैक पे। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोविड-19 का प्रोसीजर कैसे बनाएं। पूछा है कि ये कोविड-19 इंटरनल इश्यूज़ है या एक्सटर्नल इश्यूज़ है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोविड-19 का SOP कैसे बनाएं और ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है ये भी आपको पता चल जाएगा। सो प्लीज़ लेट वी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। दोस्तों, अगर आप डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद कुछ सालों तक जॉब नहीं कर पाते हैं तो आप हमारा ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद अपना करियर रीस्टार्ट कर सकते हो और अपने आप को एक्सपीरियंस होल्डर शो कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। If you need to grow in your career and need to build up a smart career, you can join our documentation training center Hub of Knowledge Make. So friends, during this session I will cover how to make SOP for COVID-19 in any organization. दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कोविड-19 इंटरनल इश्यूज़ में आता है या एक्सटर्नल इश्यूज़ में आता है और IATF के किस क्लॉज में आता है और ये ISO 45000 के किस क्लॉज में आता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि कोविड-19 के SOP किसी भी कंपनी में कैसे बनाओगे और कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, सो इस वीडियो को एंड तक देखें। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज़ को समझने के लिए हमें IATF का 4.1 क्लॉज नंबर अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कंटेक्स्ट। This is the fourth clause of IATF. Now let's explain its requirement. Identify the internal and external issues which can affect the QMS of organization and its intended result. Issues can be negative or positive. इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज़ वो इश्यूज़ होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं। ये नेगेटिव भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं और पॉजिटिव भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सो अभी समझते हैं इंटरनल इश्यूज़ किससे रिलेटेड होते हैं। इंटरनल इश्यूज़ रिलेटेड टू नॉलेज, वर्क कल्चर, कोर वैल्यूज़, परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड कस्टमर रिलेशनशिप etc. सो फॉर एग्जांपल, untrained of employees, it is related to knowledge. Second, operation complexity means not easy to operate through operator, it is related to process complexity. Third one, lack of integrity between employees, it is related to work culture. So friends, these are some examples related to internal issues in IATF clause number 4.1. Now let's understand external issues related to technology constraint, legal requirement, cultural, social, economical, regional, national और local. For example, competitive technology market etc. इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। For example, organization not submit the PF of employees related to legal requirement, it comes under external issues. Next, company sale trend down related to performance of organization. This is comes under external issues. Next, third, customer issues. This is also comes under external issues, or you can say customer complaint. Fourth, disease related to economical. This is also comes under external issues because it down the economic of company. So COVID-19 is a disease which affect the human life and economy of organization, state, country etc. So COVID-19 comes under external issues according to IATF clause number 4.1. अगर आपको स्मार्ट स्किल डेवलप करके करियर में ग्रो करना है तो प्लीज़ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और हमारा ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करें। आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम आवर ट्रेनिंग सेंटर, कैंडिडेट कैन बिल्ड अप हिज स्मार्ट स्किल्स फॉर क्रैकिंग इंटरव्यू एंड कैन गेट ए गुड जॉब इन गुड ऑर्गेनाइजेशन। The main objective of Hub of Knowledge Make Training Center providing training, placement and development of career. Friends, if you watching ready-made paid videos, then no use for it, because by watching ready-made paid video doubts are not clear, so don't waste time and money. So please join our live classes online as well as offline. Now let's understand how to make SOP, or you can say procedure for COVID-19.
SOP of COVID-19, or you can say emergency preparedness of COVID-19, comes under ISO 45000 clause number 8.2. So friends, let's start procedure for COVID-19 emergency preparedness. Purpose: to establish a procedure for emergency preparedness of COVID-19 and response for preventing and mitigation the environmental, physical and economical impacts which are associated with COVID-19. Scope: applicable to all the areas of Hub of Knowledge Mac Private Limited premises. यहाँ पे मैंने अपने ट्रेनिंग सेंटर का नाम डाला है। फ्रेंड्स, यहाँ आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है, जो भी आपकी कंपनी का नाम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी HR डिपार्टमेंट एंड अलोंग विथ कंसर्न्ड HODs। HR के साथ साथ आपका जो डिपार्टमेंटल HODs हैं उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उनको इम्प्लीमेंट करवाएं और मॉनिटरिंग करें। स्टेप नंबर 4, सिस्टमैटिक एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल सेफ्टी। सो दिस SOP only for industrial safety from COVID-19. So safety awareness is imparted to all employees to reinforce the training. The safety instructions have been prepared and displayed at relevant places. The instructions give information on safe working method in all the sections. पॉइंट नंबर 1 में आपको एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है, अवेयरनेस प्रोवाइड करवानी है रिगार्डिंग टू कोविड-19 एंड सेफ्टी मेजर्स ऑफ कोविड-19 एंड इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19. द वे ऑफ ट्रेनिंग में बी डिफरेंट. यू कैन प्रोवाइड ट्रेनिंग, वर्बल ट्रेनिंग, और यू कैन से प्रोवाइड बाय प्रोजेक्टर विद प्रोवाइडिंग सम एग्जाम्पल्स. रिस्पॉन्सिबिलिटी HR के साथ साथ कंसर्न HOD की भी हो सकती है. रिकॉर्ड हेयर रिकॉर्ड, ट्रेनिंग रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट. हेयर डॉक्यूमेंट नंबर HF02, जो ट्रेनिंग रिकॉर्ड का जो फॉर्मेट नंबर होगा वो हमको यहाँ पे लिख देना है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, HR रिव्यू एंड इनिशिएट द एक्शंस फॉर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी न्यू पर्सनल प्रोटेक्टिव एड्स फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्कमैन. Preventive measures to be taken to remove unsafe practice and initiate safety training classes and temperature checking with thermometer. This is HR responsibility for providing personal protective equipment for safe workplace and provide the guidelines for preventive measures from COVID-19 and detect the employee temperature in morning through the security guard by using thermometer. रिस्पॉन्सिबिलिटी HR रिकॉर्ड, रिव्यू रिकॉर्ड. डॉक्यूमेंट HF02, जहाँ पे आप रिव्यू कर रहे हो उस फॉर्मेट में आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो उस फॉर्मेट का नंबर है HF02. वहाँ पे ये इंश्योर करना है कि ये सभी एक्टिविटीज़ ऑन डेली बेसिस पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही. ये पॉइंट नंबर 3, पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट्स आर प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़ in all areas as appropriate, like gloves, sanitizers, goggles, safety shoes, clean wears, mask, social and distancing between employees, etc. These are the preventive measures from COVID-19. PP is like gloves and goggles, safety shoes, clean wears यानी clean clothes, mask, एंड उनके बीच में जो वर्किंग डिस्टेंस होना चाहिए वो सोशल डिस्टेंस फॉलो कराना एंड सैनिटाइज करना हर एक एम्प्लॉयज़ को ड्यूरिंग वर्किंग. सो दिस इज आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ HR एंड कंसर्न HODs. सो दिस इज द रिकॉर्ड लिस्ट ऑफ PPE एंड डॉक्यूमेंट नंबर इज HF03. पॉइंट नंबर 4, ऑन साइट इमरजेंसी प्लान. आपको ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्लेस पर क्या क्या ऑन साइट इमरजेंसी प्लान का अवेलेबिलिटी करानी है. ऑन साइट इमरजेंसी प्लान इज प्रिपेयर्ड एंड इट इज़ डिस्प्लेड इन ऑल द प्लेसेस विच ब्रीफली डिस्क्राइब द एक्शंस टू बी टेकन बाय द एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग आइडेंटिफाइड इमरजेंसी सिचुएशन. सो ऑन साइट इमरजेंसी प्लान एज फॉलो: ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल एंड स्ट्रेचर शुड बी अवेलेबल इन वर्क प्लेस and first aid kit should be available in workplace. Responsible person available for handling these first aid activities should be designed. The responsibility will MR/HR and record first aid box record and document number HF04. Point number 5, caution board are displayed whenever it is necessary, like no smoking,
कीप द एरिया क्लीन, नो एंट्री फॉर अनऑथराइज्ड पर्सन ETC एंड नो गैदरिंग। हमको 100 फ्लोर में कुछ साइन बोर्ड भी लगाने हैं। आपको जैसे डिस्प्ले करना है, क्या डिस्प्ले करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइज करने का, बार बार सैनिटाइज करने का आपको डिस्प्ले बोर्ड लगाना है उधर। और अपने एरिया को क्लीन करना है, 5S के बोर्ड उधर लगाने हैं और 5S की एक्टिविटी को मॉनिटर करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी MR + HR की होती है। यहाँ पर रिकॉर्ड आएगा 5S का, डॉक्यूमेंट नंबर है HF056। Hazards waste are disposed of through approved supplier vendor from time to time। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन में जो हजार्ड वेस्ट जो निकलते हैं जैसे केमिकल एंड वेस्टेड वाटर, उसको हमें टाइम टू टाइम पे जो है डिस्पोज करना चाहिए। और जो केमिकल्स और बैटरीज वगैरह से रिलेटेड जो हजार्ड्स मटेरियल है उसको हमें अप्रूव्ड वेंडर को सेल करना होता है और टाइम टू टाइम करना होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? स्टोर इंचार्ज की। हेयर रिकॉर्ड लिस्ट ऑफ वेस्टेज एंड डॉक्यूमेंट नंबर HF06। पॉइंट नंबर 7, हेड HR ऑर्गेनाइज मॉक ड्रिल once in 6 months एंड रिकॉर्ड आर मेंटेन। जो भी दोस्तों हमने जो भी गाइडलाइन SOP में मेंशन की हैं वो इफेक्टिवली प्रैक्टिस में है या नहीं, उसको चेक करने के लिए HR डिपार्टमेंट मॉक ड्रिल कंडक्ट करता है, जिससे उसकी इफेक्टिवनेस निकल के आती है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 1 in 6 months भी हो सकती है और आप जो है हर 2 महीने में भी कर सकते हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड HR रिकॉर्ड मॉक ड्रिल रिकॉर्ड एंड मॉक ड्रिल रिपोर्ट डॉक्यूमेंट में। रिकॉर्ड ऑफ रेफरेंस लिस्ट ऑफ इमरजेंसी नंबर ESF06। ESF06 लिस्ट के अंदर सभी इमरजेंसी नंबर्स लिखे होते हैं, लाइक हॉस्पिटल का नंबर एंड एम्बुलेंस का नंबर एंड फायर ब्रिगेड का नंबर। सो दिस इज द लिस्ट हैविंग ऑल इमरजेंसी नंबर्स दैट वी हैव टू कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। 6 डॉक्यूमेंट रेफरेंस वर्क इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑन साइट इमरजेंसी प्लान EWI 04। ये अलग से एक वर्क इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले करनी होगी 100 फ्लोर में, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में हमको किस तरीके से एक्ट करना है, रिएक्ट करना है फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम इमरजेंसी सिचुएशन। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया कोविड-19 का प्रोसीजर कैसे बनाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टूड। थैंक यू।